In today's class, we will discuss all the vessels which are present in the pelvic cavity, that is the pelvic vessels, as well as two plexus, that is the lumbar plexus and the sacral plexus, lumbosacral plexus. That is the nerve and vessels of pelvic region. The whole pelvic cavity or the organs present in the pelvic region is supplied by which artery? Abdominal aorta direct थोड़ी supply करेगा. Internal iliac artery. It is supplied by internal iliac artery, and internal iliac artery is a branch of common iliac artery, and common iliac artery is a branch of abdominal aorta. So at which level this abdominal aorta ends, and at which level, उसी को कह सकते हो कि at which level the common iliac artery arises? L4 level पे, ठीक है. L4 level पे the abdominal aorta divides into two terminal branch, that is the right and the left common iliac artery. Again common iliac artery divides into its two branches, that is external and internal iliac artery. External iliac artery सबको पता होगा, लोअर लिम्ब में जाती है सप्लाई करने के लिए, है ना. It continues as a femoral artery and supplies the lower limb, whereas internal iliac artery supplies the pelvic organ, pelvic viscera. So at which level the common iliac artery divides into its branches, that is external and internal iliac artery. L4 पे तो abdominal aorta end हुई और common iliac artery है ना. अब common iliac artery पे divide हो रही है, यहाँ L4 पे ये divide हो गई. अब these are the two common iliac, right and left. This common iliac artery again divide into an internal iliac and an external iliac. तो ये कौन से level पे होता है? It will sacroiliac joint है ना, उस level पे है. कहाँ पे divide होती है? It will divide at the corresponding sacroiliac joint, ठीक है. तो जो इधर साइड की sacroiliac joint होगी, sacrum और iliac bone के बीच में, hip bone के बीच में, उस joint पे the common iliac artery divided into two terminal branch, that is the external and the internal iliac artery. So first we will discuss about the internal iliac artery. So there are two branches, one is external, one is internal iliac of the common iliac artery, in which the external is a larger branch and the internal iliac artery is the small terminal branch of common iliac artery. So internal iliac artery is a smaller terminal branch of common iliac artery. अभी मैंने बताया था कि कहाँ से स्टार्ट होगी, किस लेवल पे? Internal iliac start at the level of sacroiliac joint, ठीक है. Then it passes downward in the pelvis और कहाँ तक जाएगी? जो greater sciatic notch है उसके upper margin तक. And at that upper margin of greater sciatic notch, it will divide it into an anterior division and a posterior division. So start हुई sacroiliac joint पे, then it runs downward in the lesser pelvis and divides at the upper margin of greater sciatic notch into an anterior division and a posterior division. Supply किसको करती है? It supply all the pelvic viscera, perineum and buttock. जो भी pelvic cavity के इधर अंदर का एरिया है, तो सारे pelvic viscera को सप्लाई करेगी, perineum को और buttock को. This is the common iliac artery. It will divide it into two terminal branch. This is external iliac artery and this is internal iliac artery. This internal iliac artery at the upper margin of greater sciatic notch, it will divide it into its two terminal branch, anterior and a posterior division. So these are the branches from the anterior as well as from the posterior division. From the anterior division, it will give superior vesicle, obturator, inferior vesicle in male, medial rectal, internal pudendal, inferior gluteal, uterine and vaginal in female. These all arteries arise from the anterior division. Whereas posterior division, it gives three branch: iliolumbar, lateral sacral and superior gluteal artery. So these are the branches from the three branches from the posterior and rest from the anterior division. So this is a common iliac artery. It divides into two terminal branch, external तो ये नीचे चली जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी femoral में और lower limb को सप्लाई करेगी. This is the internal iliac artery, and this internal iliac artery, it will divide into an anterior division. So this is the anterior division
और जो ये पीछे दिख रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। दिस पोस्टीरियर डिवीजन हैज गॉट 3 ब्रांच, इलियोलम्बर, superior gluteal, and the third one is lateral sacral artery. So these are the 3 branches from the posterior division, whereas anterior division gives numerous branches, that is superior vesical, obturator, uterine or vaginal artery, ठीक है, inferior vesical artery, middle rectal, inferior gluteal and internal pudendal. So one by one we will discuss all these artery की कौन सी artery किसको supply कर रही है। Otherwise आपने अलग अलग regions में यूट्राइन आर्टरी सारी को पढ़ लिया है, ठीक है। We just see which artery supplies which organ or which vessel. First is the superior vesical artery. The superior vesical artery, it is a persistent proximal part of umbilical artery in fetus, ठीक है। ये क्या है? It is a persistent proximal part of umbilical artery, fetus में थी ना, उसी का जो persistent पार्ट बचा रह जाता है वही फॉर्म करता है, क्या है? क्यों पहले सीट पे बैठ के बातें कर रहे हो? So the superior vesical artery, it is a persistent proximal part of umbilical artery in fetus. It runs forward medially, मतलब बेसिकली वेसिकल से आपको पता ही चल रहा है किसको सप्लाई करती है, तो सप्लाई द अपर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। और जब ये क्रॉस करती है डक्टस डिफरेंस को, तो इट आल्सो गिव्स ब्रांच टू इट, ठीक है। और नीचे जाकर के डिस्टली इट गेट कंटिन्यूअस, आपने जब एंटीरियर एब्डोमिनल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा होगा मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, पढ़ा है ना? हाँ, तो डिस्टली ये जाके कंटिन्यूअस किसके साथ हो जाती है? गेट कंटिन्यूअस विद द मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट व्हिच रिप्रेजेंट द डिस्टल ऑब्लिटरेटेड पार्ट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, क्योंकि फीटस में जो अम्बिलिकल आर्टरी थी उसी का जो रेमिनेंट बचा है वही बना रहा है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। तो इट डिस्टली इट फॉर्म्स अ मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट व्हिच रिप्रेजेंट द डिस्टल ऑब्लिटरेटेड, वो पार्ट जो कि डिस्टली ऑब्लिटरेट हो गया था अम्बिलिकल आर्टरी का, सिर्फ जो प्रॉक्सिमल पार्ट बच गया था उसको हमने क्या बोला? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। डिस्टल पार्ट जो ऑब्लिटरेट हो गया वही लिगामेंट बना दिया, ठीक है। और ये सप्लाई किसको किया? यूरिनरी ब्लैडर को किया। The second artery which is from the anterior division is the obturator artery. This obturator artery it passes forward along the lateral wall of pelvis, ठीक है, along with the obturator nerve, और ये pelvis को लीव करता है to the obturator canal, ठीक है। बेसिकली ये किसको सप्लाई करता है? It will supply the pelvic muscles and muscles of the, आपने पहले भी पढ़ा है ना, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मसल्स है, कौन कौन सी मसल होती है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में? मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में कौन कौन सी मसल है? मीडियल कंपार्टमेंट को और क्या बोलते हो? ठीक बोल रहे हो? किसने बोला? हाँ, एडक्टर कंपार्टमेंट है ना, एडक्टर मैग्नस, ब्रेविस, लॉन्गस, तो उनको सप्लाई करेगा, ठीक है, एज वेल एज इट गिव ऑन न्यूट्रिएंट्स। The third branch is the inferior vesical artery. It runs forward to the base of the bladder. जैसे superior vesical किसको सप्लाई कर रही थी? ब्लैडर को सप्लाई कर रही थी। Similarly, it also supplies the bladder. It runs forward to the base of the urinary bladder, supply the base of bladder, prostate, seminal vesicle in male. Also gives rise to artery of ductus deferens. किसकी ब्रांच है? इसी की ब्रांच है। तो inferior vesical and superior vesical both will supply the bladder. आपने ब्लैडर में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ब्लैडर सप्लाइड बाय 2 आर्टरी विच इज फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। देन देयर इज अ आर्टरी कॉल्ड मिडल रेक्टल आर्टरी। इट इज अ स्मॉल ब्रांचेस व्हिच पासेस मीडियल टू द रेक्टम। रेक्टम को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी? हाँ, superior rectal, middle rectal, inferior rectal, है ना। So this middle rectal it is a branch of internal iliac artery, common, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करती है? It will supply the seminal vesicle, prostate and the inferior part of rectum. Now there is a branch called internal pudendal artery. It is the, आपने पेरिनियम की सप्लाई में पढ़ा होगा।
So it is the principal artery of perineum. It will supply the perineum. ठीक है, it will supply the skin, muscle of perineum and anal canal. Basically इतना ज्यादा जो आपको arteries vessels नहीं पूछा जाता है, external internal एग्जाम में नहीं आता, बट जो जितनी भी ब्रांचेस है वो किसको सप्लाई कर रही है वो पता होना चाहिए आपको. इंटरनल आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी की जितनी ब्रांचेस है एंटीरियर डिवीजन से या पोस्टीरियर डिवीजन से, तो पूरा डिटेल में तो कोर्स याद करने का कोई फायदा भी नहीं है, पूछा नहीं जाता है, तो उतना आपको डिटेल में याद नहीं करना है. कोर्स वैसे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट आर्टरी का ही याद करना है, बट बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर कि विच आर्टरी सप्लाइज विच ऑर्गन. ठीक है, so this internal pudendal artery, it will supply the skin and mucous muscles of perineum and anal canal. Now inferior gluteal artery, superior और inferior gluteal artery कहाँ पड़ा था, किसको सप्लाई करती थी, लोअर लिम्ब में, ग्लूटियस मैक्सिमस को, और सुपीरियर वाली मिनिमस और मीडियस को, है ना. So this is the largest branch of anterior division and it will supply the pelvic diaphragm, piriformis, hamstring, gluteus maximus and the sciatic nerve. So inferior gluteal artery, it will supply the pelvic diaphragm को, piriformis को और gluteus maximus को, sciatic nerve, इन सबको सप्लाई करेगी. और आप फीमेल में it will give two branches, one is called the uterine artery and another one is called the vaginal artery. नाम से ही पता चल रहा है किसको सप्लाई करेगी, यूट्रस को और वजाइना को. ठीक है, इट विल रन मीडियली ऑन द पेल्विक फ्लोर, क्रॉसेस द यूरेटर. ठीक है, और फाइनली क्या करती है, इट विल असेंड अलोंग द लेटरल मार्जिन. यूट्रस के साइड में क्या लगा हुआ है, कौन सा लिगामेंट, किस लिगामेंट के, इसमें नहीं, साइड में, बॉडी के साइड में क्या है, ब्रॉड लिगामेंट. तो विद इन द ब्रॉड लिगामेंट इट विल रन अलोंग दी, और फिर वहां से यूट्राइन ट्यूब के पास चली जाती है, और यूट्राइन ट्यूब, जो यूट्राइन ट्यूब है, यूट्राइन ट्यूब पे इधर से ओवेरियन आर्टरी आ रही है, इधर से यूट्राइन आर्टरी आ रही है. तो इट विल अनास्टमोज अलोंग विद द फेलोपियन ट्यूब. यूट्राइन ट्यूब के पास में जाकर के नीचे से तो ओवेरियन आर्टरी आ रही है, इधर से सॉरी यूट्राइन आर्टरी आ रही है, विच रन्स अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस, and along the fallopian tube the ovarian artery come and the two anastomose along the fallopian tube, or it gets also a vaginal branch. ठीक है, last artery is the vaginal artery. It will correspond to the male में मैंने क्या बताया था, inferior vesical artery is present only in the male, it's not present in the female. तो उसकी जो corresponding part female में है, that is the vaginal artery, और it will supply the, क्योंकि वो क्या सप्लाई कर रहा था, inferior vesical artery बेस ऑफ द ब्लैडर को सप्लाई कर रहा था. तो फीमेल में द बेस ऑफ द ब्लैडर एज वेल एज द वजाइना, इट इज सप्लाइड बाय द वजाइनल आर्टरी. So these are all the branches from the interior division of iliac artery. And now there are three branches from the posterior division of internal iliac artery. The first is the iliolumbar artery. ठीक है, iliolumbar artery नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ की लंबर रीजन की जो भी मसल्स हैं, सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, इलियकस या कॉर्डा इक्विना. कॉर्डा इक्विना क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती है वो जो नीचे आती है, फ्रॉम L2 टू फर्स्ट कॉर्टेक्स, उसका जो कलेक्शन ऑफ बंच है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्डा इक्विना. तो कॉर्डा इक्विना का सप्लाई करिए और ऑल द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लंबर रीजन. ठीक है, उन सबको कौन सी आर्टरी सप्लाई करिए, इट इज सप्लाइड बाय द इलियोलम्बर आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी. ठीक है, तो इट विल असेंड अलोंग द sacroiliac joint behind the external iliac vessel, और रीच कर कहाँ करती है, इट विल रीच behind the psoas major where it will divide it into a lumbar and the iliac branch and supplies these muscles. Next branch from the posterior iliac artery is the lateral sacral artery. Usually two in number होती है, runs downward and medial over the sacral nerve. ठीक है, और terminate, और ये basically सप्लाई करती है muscle and skin on the dorsum of sacrum. जो भी डॉर्सल सरफेस ऑफ सैक्रम की जो स्किन है और वहां की मसल्स है, उन सबको सप्लाई करती है लेटरल सेक्रल आर्टरी. नाउ द लास्ट आर्टरी फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन इज द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी. ये आपको पहले ही पता है, सुपीरियर ग्लूटियल किसको सप्लाई करती है, इट विल सप्लाई द ग्लूटियाई मसल, दैट इज ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस. उसके अलावा टेंसर फेशियल आर्टर को और पायरिफॉर्मिस को सप्लाई करती है. तो दिस
This is all about the internal iliac artery. Apart from internal iliac artery, there are few arteries also present in the pelvic region. The first is the middle sacral artery. Middle sacral artery किसकी ब्रांच है? एब्डोमिनल ऑर्टा की, है ना, जहाँ पे टर्मिनेट करता है वहां से डोर्सल एस्पेक्ट से एक आर्टरी अराइज करती है. दैट इज द मिडल सैक्रल आर्टरी. इट इज अ स्मॉल आर्टरी दैट अराइज एट द बाइफर्केशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा. और ये इट डिसेंड्स ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स और वहां की स्किन को सप्लाई करती है. So this is the middle sacral artery which is also present in the pelvic cavity. Now और आर्टरी होगी कौन सी? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसको सप्लाई कर रही थी? अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम को सप्लाई कर रही थी. तो दिस आपने एब्डोमिनल ऑर्टा की 3 ब्रांच पढ़ी थी वेंट्रली. तो सुपीरियर फ्रॉम सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक. इंफीरियर मेसेंट्रिक का जो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी क्या है? इट इज द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. तो ये देखो, दिस इज द एब्डोमिनल ऑर्टा, उसकी सबसे नीचे वाली ब्रांच है. दिस इज द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. Inferior mesenteric artery will get continuous below and it is called the superior rectal artery which will supply the rectum and upper half of anal canal. ठीक है? So it is a direct continuation of inferior mesenteric artery. It will supply the mucous membrane of rectum and upper half of anal canal. तो ये भी क्योंकि rectum और anal canal कहाँ present है? It is present within the pelvic cavity. So this vessel is also present within the pelvic cavity और वो pelvic viscera को supply करेगी. Now the last artery that is the ovarian artery, है ना. ovarian artery arises, ये भी आपको डायरेक्ट कहाँ जाएगी? इंटरनल की ब्रांच नहीं है, डायरेक्टली अराइज कहाँ से करती है? एब्डोमिनल ऑर्टा से. तो इट अराइजेस फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्टा एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्री. ठीक है, क्रॉस करती है एक्सटर्नल iliac को और एंटर कहाँ कर जाती है? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी. वो प्रेजेंट है ऊपर फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे, वहाँ पे साइड में, है ना. ओवरी और फेलोपियन ट्यूब को जो कनेक्ट करती है वो है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी. So this suspensory, it will enter the suspensory ligament or then it will passes into the broad ligament and enter ovary by the way of mesovarium. So this is the abdominal aorta. It arises from the abdominal aorta at the level of L1 और उसके बाद suspensory ligament of ovary में enter करके finally ये कहाँ mesocellular के through होकर के it will go and supply the ovary. So this is all about the ovarian artery. So this ovarian artery is also present in the pelvic cavity. So these are all the arteries. एक तो internal iliac की सारी branches होगी, middle sacral artery, superior rectal artery and the ovarian artery. These are all the vessels present in the pelvic cavity. Now the veins क्या होंगे? Vein artery के corresponding होंगे. ठीक है, तो आर्टरी सप्लाई क्या करी थी? इंटरनल इलियक आर्टरी. तो वेन जो ड्रेन करके ले जाएगा दैट इज द इंटरनल इलियक आर्टरी. इट रन्स अपवर्ड लेटरल टू द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड जॉइंस द एक्सटर्नल इलियक, है ना. एक्सटर्नल और इंटरनल कॉमन इलियक डिवाइड कर रहा था तो इट विल फॉर्म द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इलियक आर्टरी. वैसे ही सिमिलर क्या है, वेन्स एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक वेन ज्वाइन करके क्या बनाएगी? इट विल फॉर्म द कॉमन इलियक वेन. इट्स ट्रिब्यूटरीज करस्पॉन्ड टू द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच को करस्पॉन्ड करेगा एक्सेप्ट द अम्बिलिकल एंड द लंबर वेन. ये अम्बिलिकल वेन जो होता है वो डायरेक्टली पोर्टल वेन में ड्रेन करता है और जो लंबर वेन होता है वो डायरेक्टली कॉमन इलियक वेन में होता है. बाकी जितनी भी आर्टरी की करस्पॉन्डिंग वेन्स होंगी वो सारी की सारी कहाँ जाकर ड्रेन करेंगी? इट विल ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक आर्टरी एक्सेप्ट दीज टू अम्बिलिकल एंड द लंबर वेन्स विच इज प्रेजेंट. लोअर वाला आपकी पेल्विक कैविटी में होगा बट इट विल ड्रेन नॉट इनटू द इंटरनल इलियक वेन. अपार्ट फ्रॉम इट जो बाकी 3 आर्टरीज मैंने बताई थी ना इंटरनल इलियक आर्टरी के, तो उसके साथ साथ भी करस्पॉन्डिंग वेन होगी. दैट इज द मिडल सैक्रल वेन, ओवेरियन वेन एंड सुपीरियर रेक्टल वेन. ठीक है, तो मिडल सैक्रल वेन accompany the corresponding artery and terminate in the left common iliac vein. Superior rectal vein, superior rectal artery किसकी continuation थी? Inferior mesenteric artery की. तो ये किस में जाकर के कंटिन्यू हो जाएगी? inferior mesenteric vein में. So it will accompany the artery and become inferior mesenteric vein after crossing the common iliac artery. ठीक है, तो जैसी आर्टरी है वैसे ही corresponding बस वो नीचे से ड्रेन करके ले जाएगी वो आएगी. तो if superior rectal artery is a continuation of inferior mesenteric artery, तो इसीलिए superior rectal vein जाकर किस में कंटिन्यू हो जाएगा?
It will continue into the inferior mesenteric vein. Now the last vein which is present in the pelvic cavity is the ovarian vein. Ovarian vein कैसे बनता है? जो आपके it will form just below the pelvic inlet by the, वहाँ पे बहुत सारी pampiniform plexus of vein होगी जो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे, ठीक है. Pampiniform plexus जो होती है around the ovarian artery, they all fuse to form the ovarian vein. Or on the right side this ovarian vein drain into the inferior vena cava, whereas on the left side it will drain into the left renal vein. और form कैसे हुआ? It will form by the pampiniform plexus which is around the ovarian artery. ठीक है. So this is the plexus. These plexus unite to form the right and the left ovarian vein. The right वाला आपका inferior vena cava में open करता है और left वाला left renal vein में open करता है, मतलब drain करता है जाकर के. Now the second topic, खड़े हो आप. लंबर प्लेक्सस कैसे बनता है? मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाई थी. लास्ट अभी तो होगी. कैसे बनती है? पढ़ा भी होगा. पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक. पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ही दिया हुआ है लंबर प्लेक्सस. तो बस जस्ट मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी क्योंकि लंबो सेक्रल प्लेक्सस पे डील करना है. लंबर प्लेक्सस बनता कैसे है? कहाँ से कहाँ तक? हाँ, S4 तक लंबर ही होगा तो फिर सैक्रल प्लेक्सस क्या करेगा? हाँ, जब लंबर ही इतना वहां से L4 से L1 से S4 तक बनाएगा तो सैक्रल प्लेक्सस कहाँ से कहाँ तक बनेगी? बताओ. तो बोला L1 से S4 तक. ये तो मैंने लंबोसेक्रल प्लेक्सस के बारे में लिखा हुआ है. इट विल डिराइव फ्रॉम द इंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ L1 to S4 nerve root. और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस लंबोसेक्रल प्लेक्सस? क्या क्या पार्ट्स होंगे इसके? बैठ जाओ. प्लेक्सस आप सबको पता है कि प्लेक्सस क्या होती है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर डिराइव फ्रॉम द. तो लंबर और सेक्रल है तो किसके नर्व रूट से अराइज करेगी? लंबर स्पाइनल नर्व एंड सेक्रल स्पाइनल नर्व. ठीक है. तो ये बेसिकली जो लंबोसेक्रल प्लेक्सस है वो पूरा L1 to S4 है. दिस लंबोसेक्रल प्लेक्सस हैज गॉट 3 कंपोनेंट होते हैं. एक तो लंबर प्लेक्सस हो गया, एक दूसरा हो गया लंबोसेक्रल ट्रंक, and the third one is the sacral plexus. What is lumbosacral trunk? उस दिन पढ़ाया था मैंने आपको. And why L4 is called nervi fucalis? Nervi fucalis क्यों बोलते हैं L4 स्पाइनल नर्व को? ये भी मैंने बताई थी आपको अपने लास्ट क्लास में जब भी लंबर प्लेक्सस पढ़ाया था. L4 को क्यों बोलते हैं nervi fucalis? As it is forms a connecting link between the lumbar and the sacral plexus. लंबर प्लेक्सस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सेक्रल प्लेक्सस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नर्वी फ्यूकालिस कहते हैं, क्योंकि वो दोनों प्लेक्सस में फॉर्म पार्टिसिपेट कर रहा है. तो इट हैज गॉट 3 कंपोनेंट, दैट इज द लंबर प्लेक्सस, द लंबोसेक्रल ट्रंक एंड द सेक्रल प्लेक्सस. जो ये लंबोसेक्रल ट्रंक है ना, वो बेसिकली क्या है? सेक्रल प्लेक्सस का ही पार्ट है. ठीक है ना. ये दोनों मिल करके लंबोसेक्रल ट्रंक और ये दोनों मिल करके ही पूरा ये आपका सेक्रल प्लेक्सस बनाता है. तो L4 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इसको L4 को नर्वी फुकालिस कहते हैं. तो बेसिकली दिस इज द लंबोसेक्रल प्लेक्सस. ऊपर वाला आपका लंबर प्लेक्सस है, नीचे वाला आपका सेक्रल प्लेक्सस है, और ये जो L4 है और L5 है, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है? लंबोसेक्रल ट्रंक, which is the part of sacral plexus. किसका पार्ट है? Sacral plexus का पार्ट है. तो from L1 to L4
दिस फॉर्म द लंबर प्लेक्सस। लंबर प्लेक्सस में कहाँ से कहाँ तक आता है? L1 से लेकर के L4 तक आता है। L4 का स्मॉल डिवीजन आता है। लार्ज डिवीजन जो L4 है वो L5 के साथ फ्यूज करके ट्रंक बनाता है, विच इज कॉल्ड द लंबोसेक्रल ट्रंक, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेक्रल प्लेक्सस। तो दिस सेक्रल प्लेक्सस आप कह सकते हो कि ये L4 से लेकर के S3 तक बनता है, ठीक है ना। तो उस दिन भी बताया था कि ये लंबर प्लेक्सस कहाँ बनता है? इट इज फॉर्म विद इन द सब्सटेंस ऑफ सॉस मेजर। कहाँ फॉर्मेशन होता है लंबर प्लेक्सस का? जो सॉस मेजर मसल है विच इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसके अंदर ही प्लेक्सस प्रेजेंट है ना। और नर्व को क्रॉस मतलब पियर्स करके सारी उसकी ब्रांचेस बाहर आती हैं। तो इट इज फॉर्म विद इन द सब्सटेंस ऑफ सॉस मेजर by the union of ventral rami of L1, L3 and L4 and a small part of L4, ठीक है। L1, L2, L3 और थोड़ा सा पार्ट किसका आता है? T12 का भी आता है, ठीक है। A small part of T12, the whole L1 to L3 spinal nerve, the ventral division and a part of L4 nerve, ठीक है। और L4 को नर्वी फोर्कालिस कहते हैं क्योंकि ये आपका लंबर प्लेक्सस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सेक्रल प्लेक्सस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है बाय joining with L5 and forming the lumbosacral trunk. So this is the lumbar plexus. उस दिन भी मैंने बताया था कि lumbar plexus basically L1 to L3, थोड़ा सा पार्ट T12 का आ रहा है और थोड़ा सा पार्ट नीचे से L4 का जा रहा है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये जो L1 वेंट्रल रमाई ऑफ L1 नर्व है वो क्या कर रही है? इट विल टेक अ स्मॉल ट्विग फ्रॉम द T12। T12 से एक स्मॉल पार्ट ले रही है, दिस L1, and then this L1 it will divide it into two branches, a upper larger part and a lower smaller part. This upper larger part it will give two branches, iliohypogastric nerve and ilioinguinal nerve. जो इसका lower smaller part है ये एक twig लेगा किससे? L2 से, और ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएगा? जेनाइटोफेमोरल नर्व बनाएगी, ठीक है। बाकी आपकी जो बच गई L2, L3, L4, these three divided into a ventral and a dorsal branch। ये तीनों क्या हो जाएगा? एक वेंट्रल डिवीजन में हो जाएगी और एक डॉर्सल डिवीजन। तो ब्लू कलर को वेंट्रल में दिखाया गया और ये ग्रीन कलर को डॉर्सल में दिखाया गया। तो दिस वेंट्रल डिवीजन ऑफ L2, L3 एंड L4, इसके फ्यूजन से क्या बनती है? ऑब्टुरेटर नर्व बनती है। और जो लोअर टू है वेंट्रल डिवीजन ऑफ L3 एंड L4, ये दोनों कभी ये ऑलवेज नॉट प्रेजेंट, एक्सेसरी ऑब्टुरेटर नर्व इज नॉट प्रेजेंट एवरी टाइम, ठीक है। तो इफ इट इज प्रेजेंट इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ L3 एंड L4। अब तीनों का जो डॉर्सल डिवीजन है L2, L3 एंड L4, दिस विल फॉर्म द फेमोरल नर्व। एक्सेसरी ऑब्टुरेटर में क्या था कि नीचे दो की वेंट्रल डिवीजन ज्वाइन की थी, बट यहाँ पे क्या है? डॉर्सल डिवीजन में अपर टू की दो डॉर्सल डिवीजन L2 और L3 की ये ज्वाइन करके क्या बनाएगी? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो दिस इज ऑल अबाउट द लंबर प्लेक्सस, ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ, L1 है, L1 ट्विग ले रही है किससे? T12 से, ठीक है, और डिवाइड कर रही है दो ब्रांच में, अपर लार्ज ब्रांच है, लोअर स्मॉल ब्रांच है। अपर लार्ज ब्रांच ये दो नर्व बना रही है, इलियोहाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियोइंगुइनल। जो लोअर स्मॉल ब्रांच है वो एक ट्विग ले रही है किससे? L2 से, और क्या बना रही है? जेनाइटोफेमोरल नर्व बना रही है। बाकी L2, L3 और L4 ये सारी क्या हो रही है? एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो रही है, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन। तीनों का वेंट्रल डिवीजन ऑब्टुरेटर नर्व बनाएगा, तीनों का डॉर्सल डिवीजन फेमोरल नर्व बनाएगा। वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर टू L3, L4 ये एसेसरी ऑब्टुरेटर नर्व बनाएगा, और अपर टू का डॉर्सल डिवीजन लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई बनाएगा। तो दीज आर ऑल द नर्व्स फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस। और L4 और L5 ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएगा? लंबोसेक्रल ट्रंक which will participate in the sacral plexus, ठीक है। तो लंबोसेक्रल ट्रंक क्या है? इट इज अ थिक कॉर्ड फॉर्म बाय द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ, क्योंकि उसका असेंडिंग पार्ट तो कहाँ चला गया था आपका? लंबर प्लेक्सस में। L4 का दो पार्ट हो गए, असेंडिंग पार्ट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लंबर प्लेक्सस, जो उसका डिसेंडिंग पार्ट है वो इंटायर वेंट्रल रमाई ऑफ L5 के साथ फ्यूज करके लंबोसेक्रल ट्रंक बनाता है, और दिस लंबोसेक्रल ट्रंक विल पार्टिसिपेट इन द सेक्रल प्लेक्सस। So it is formed by the ventral primary rami of L4, L5 by the lumbosacral trunk, और उसके बाद sacral में क्या आता है? S1, S2 and S3, and this plexus वो कहाँ था? That plexus is present within the substance of psoas major, और ये कहाँ पे present होता है? It will lie in front of piriformis muscle, ठीक है। So this is the sacral plexus which is formed by the ventral rami of L4
to S3 spinal nerve. L4 L5 मिल करके क्या बना रहा है, लंबोसेक्रल ट्रंक। तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो रूट से ना यहाँ पे ये क्या देता है, सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेस देती है। तो मस्कुलर ब्रांचेस किस किस मसल को सप्लाई करती है, यहाँ पे पायरिफॉर्मिस को सप्लाई करेगी, कॉक्सीजियस मसल को सप्लाई करेगी और लेवेटर एनाई को सप्लाई करेगी। तो फ्रॉम द रूट इट विल गिव न्यूमरस मस्कुलर ब्रांच व्हिच विल सप्लाई द पायरिफॉर्मिस, लेवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस। ठीक है, उसके अलावा आपको याद होगा कि पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल आउटफ्लो भी पढ़ा होगा, है ना। वो कहाँ से आती है, S1 S2 S3 से सैक्रल आउटफ्लो निकलता है, जिसको जो कि दो पढ़ा है ना, थोरैकोलम्बर सिंपैथेटिक है और सैक्रल आउटफ्लो पैरासिम्पैथेटिक है। तो वो भी कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है, S1 S2 S3। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट दिस सैक्रल प्लेक्सस गिव टू टर्मिनल ब्रांचेस। एक को हम कहते हैं शियाटिक और दूसरे को कहते हैं पुडेंडल नर्व। तो दो टर्मिनल ब्रांचेस भी ये देती है। तो फाइनली पहले एक प्लेक्सस को थोड़ा समझ लो। दिस इज L4 L5 S1 S2 S3। ठीक है, तो ये क्या होती है, दीज ऑल डिवाइडेड। ये भी, इसमें भी आपको जो ब्लू कलर दिखाया गया है वो वेंट्रल दिखाया गया है और जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है दैट इज द डॉर्सल डिवीजन। ठीक है, शियाटिक नर्व और पुडेंडल नर्व इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस है। ठीक है, दिस शियाटिक नर्व आपने लोअर लिम्ब में पढ़ा है, इट हैज गॉट टू कंपोनेंट, वन इज कॉमन पेरोनियल एंड वन इज टिबियल। ठीक है, तो द वेंट्रल डिवीजन ऑफ L4 L5 S1 S2 and S3, all these five fuse to form the tibial nerve, whereas dorsal division of L4 L5 S1 S2, इसमें S3 नहीं आएगा, these all fuse to form the common peroneal nerve, और ये पूरा मिलाकर के क्या हो गया, sciatic nerve हो गया। अगेन पुडेंडल किससे बनती है, पुडेंडल बनती है वेंट्रल डिवीजन ऑफ S2 S3 और S4 से भी आती है। ठीक है, तो दिस विल फॉर्म द पुडेंडल नर्व। तो these are the two terminal branches of the sacral plexus। एक हो गई आपकी शियाटिक नर्व, दूसरी पुडेंडल नर्व। शियाटिक नर्व के दो कंपोनेंट है, टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल। जो टिबियल वाला है वो वेंट्रल से आएगा और जो कॉमन पेरोनियल है वो डॉर्सल से आएगा। टिबियल में भी L4 L5 S1 S2 S3 और ये जो कॉमन पेरोनियल है वो L4 L5 S1 एंड S2। पुडेंडल में S2 S3 और S4 के वेंट्रल डिवीजन आते हैं। ठीक है, अब now apart from it will give branches along the ventral surface of the sacrum, और कह सकते हो कि pelvic surface के along और पीछे dorsal surface के along कुछ branches निकलती है। तो जो pelvic surface के along कुछ branches निकलती है sacral plexus से, समझ में आ रहा है ना। pelvic जो होगा जो अंदर की तरफ pelvic cavity में आ रहा है sacral का surface, that is the ventral surface of the sacrum। वहाँ उस surface से दो branch निकलती है, one is known as nerve to quadratus femoris and one is known as nerve to obturator internus। ठीक है, नर्व, और ये क्योंकि दोनों ही कहाँ से निकल रही है, वेंट्रल सरफेस से निकल रही है, तो याद रखने के लिए कि दोनों क्या चीज है, वेंट्रल डिवीजन से बनी हुई है। ठीक है, तो नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस में इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ L4 L5 एंड S1, और नर्व टू ऑपरेटरी इंटरनस जो होती है दैट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ L5 S1 S2। ठीक है, ये एक अपर से आएगी L4 L5 S1 और ये नीचे से आ रही है L5 S1 और S2 के भी कंपोनेंट आएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट जो डॉर्सल साइड से निकलती है, तो देयर आर, दिस इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, inferior gluteal nerve, posterior cutaneous nerve of thigh and एक ये posterior cutaneous nerve of thigh and the perforating cutaneous nerve, all these are from the dorsal surface। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, सबकी डॉर्सल डिवीजन आएगी। सुपीरियर ग्लूटियल का रूट वैल्यू क्या है, डॉर्सल डिवीजन ऑफ L4 L5 S1 सेम एज नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, एंड इंफीरियर ग्लूटियल की डॉर्सल डिवीजन ऑफ L5 S1 S2 सिमिलर एज नर्व टू ऑब्टरेटर इंटरनस। बस याद रखना है कि यहाँ पे दोनों वेंट्रल है और यहाँ दोनों ये डॉर्सल डिवीजन है। अपार्ट फ्रॉम इट परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व डॉर्सल डिवीजन ऑफ S2 और S3 से आ रही है, और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई में डॉर्सल डिवीजन ऑफ S1 S2 एंड S3। थैंक यू। दिस विल फिनिश